हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे चैनल पर आपको सरल हिंदी और अंग्रेजी में सीबीएसई और आरबीएसई बुक्स के टीचिंग वीडियोस मिलेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और आप अपना कमेंट भी वैल्यूएबल रूप में हमें दें ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बना सकें। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सीबीएसई और आरबीएसई में एक पोइम है आपके सिलेबस में, फायर एंड आइस। क्लास 10th जो है, क्लास 10th की बुक है आपकी फर्स्ट फ्लाइट जो टेक्स्ट बुक है उसमें फायर एंड आइस एक पोइम दिया हुआ है। ये एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोइट की पोइम है और बहुत ही फेमस ये पोइम है। थोड़ा सा मैं आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बता देता हूँ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन इंग्लिश पोइट थे और उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में बहुत अच्छे पोइम्स लिखे हैं। उनके पोइम जो है सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करने वाले होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ नॉन फॉर द रियलिस्टिक पिक्चराइजेशन ऑफ रूरल लाइफ विद द हेल्प ऑफ रूरल इमेज, एंड ही ऑलवेज ट्राइज to solve the problem of social life of the people. And today's poem is fire and ice. जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आज हम fire and ice poem पढ़ेंगे। fire and ice, as you can see, the title of the poem is fire and ice. These are the two symbols that are used by the poet in order to explain the poem. In this poem, Robert Frost used these symbols as the objects that can destroy the world, destroy the humanity. Because in the introduction section of the poet, I have told you that Robert Frost used some social problem with his image, and he always tries to solve the problems. So fire is the symbol of unending desires of a modern man, and ice is the symbol of hatred that has been explained by the poet in the poem. Because आप देखते हैं कि आज का जो मनुष्य है वो क्या करता है, वो हमेशा ही अपने एम्बिशंस में बिजी रहता है, उसकी डिज़ायर्स अनएंडिंग होती है, उसे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्राप्त करने की आग लगी रहती है। कवि ये कहना चाहता है कि फायर इज़ द सिंबल ऑफ अनएंडिंग डिज़ायर्स, द डिज़ायर्स दैट लीड्स द मैन टूवर्ड्स डेथ, टूवर्ड्स डिके, एंड दैट विल लीड हिम टूवर्ड्स हिज डेथ. And ice is the symbol of hatred. The second thing the poet wants to convey that can destroy the humanity, that can destroy the world, is the hatred. Because you can see here in the present scenario of the world, the countries and the people are isolated and they are living a kind of isolated life with hatred. They hate each other, they have a kind of jealous feelings for one another. So this is the thing that the poet wants to convey with the help of this short poem of at about 9 lines. As you can see, in the first stanza there are only 4 lines, and in the second stanza there are only 5 lines. So in the short span of 9 lines, the poet has conveyed the message that the world can be destroyed only by the modern man's unending desires and the hatred that has developed among the people, among the nations, and between the people. So now we explain the poem. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But
if it had to perish twice. I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. So in the first stanza the poet says that कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इस संसार का जो विनाश है, इस संसार का जो एंड है वो फायर से होगा. Means with the help of the poem the poet wants to say that fire is a kind of object that has been explained in some religious or books, some legendary books, that the world will end with fire. कि कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, कुछ धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि संसार का विनाश किससे होगा, आग से होगा. लेकिन कुछ धर्म ग्रंथों में कुछ भविष्यवेताओं ने ऐसा लिखा है कि संसार का विनाश आग से होगा. फिर कवि आगे कहता है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर. लेकिन कवि का कहना है, कवि ये मानता है कि दोनों ही चीजें, चाहे हम आग की बात करें, चाहे हम बर्फ की बात करें, आइस की बात करें, जो डिजायर्स हैं, जो टेस्ट ऑफ डिजायर्स हैं, उसके बारे में कवि कहता है कि वो भी पर्याप्त है संसार के विनाश के लिए. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. और मैं उनके साथ सहमत हूं जो ये कहते हैं कि संसार का विनाश किससे होगा, आग से होगा. बट इफ हिट हैड टू पेरिश ट्वाइस. लेकिन दो चीजें जो ये बताई गई हैं, दोनों ही चीजें, पेरिस का मतलब यहां पर ये होता है कि डाई, विनाश होना, ट्वाइस यानी दो बार. कवि ये कहना चाहता है कि भाई ये दोनों ही चीजें संसार का विनाश करने के लिए पर्याप्त हैं. फिर कवि आगे कहता है थिंक आई नो एनफ ऑफ हैट. कि हैट भी क्या होती है, वो एनफ होती है, पर्याप्त होती है. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. कि आइस भी बहुत ज्यादा पर्याप्त होती है और बहुत ही क्या होती है, सफिशिएंट होती है. हम ये कह सकते हैं कि कवि का ये मानना है कि फायर और आइस दोनों ही संसार का विनाश करने में सक्षम हैं, दोनों ही संसार में विनाश ला सकते हैं. तो कवि का यहाँ पर कहने का मतलब है कि द पीपल हु आर इन फेवर ऑफ फायर एंड द पीपल हु आर इन फेवर ऑफ ice, they both are true. Means these are the two things that can destroy the world. So with the help of this poem the poet wants to convey the message of humanity, that today the people are living a kind of life in which they are not happy with what they have. They are only busy in making money, in making profits, in earning money, and they are not caring for nature, they are not considering for their spiritual development, what the poet wants to say. So with the help of the poem the poet say that fire and ice both are capable to destroy the world. हम ये भी कह सकते हैं कि कवि ये विचार हमारे सामने व्यक्त करना चाहता है कि जो साइंटिफिकली और रिलीजियसली जो हमारे पास बुक्स हैं, जो बाइबल है, जो क्रिश्चियन रिलीजन की बुक है, या जो और बाकी जो रिलीजन है उनकी बुक है, हमारे जैसे हिंदू धर्म में भी ऐसा लिखा हुआ है कि पहले जो है संसार का विनाश किससे हुआ था, पानी से हुआ था, बाढ़ से हुआ था, पानी की बाढ़ से. तो कवि ये कहना चाहता है कि दीज आर द थिंग्स दैट हैज बीन एक्सप्लेन इन द रिलीजियस बुक्स, इन द लीजेंड बुक्स. और with the help of these two examples he used the two symbols fire and ice to represent the desires and ambitions of modern men and hatred that is spreaded throughout the world. In short, the poet wants to say that the modern civilization is moving towards its destruction, but the end of the world will be shown as per the deeds of human beings in the modern world. सो ये एक पोइम है, छोटी सी पोइम है, बस इसमें बहुत बड़ा विचार ये व्यक्त किया गया है कि संसार का विनाश मनुष्य के खुद के कर्मों से होगा, बढ़ती हुई हिंसाओं से होगा, और आग और बर्फ उन हिंसाओं के ही प्रतीक कवि ने काम में लिए हैं. फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं कि इस पोएम के अंदर कौन कौन सी पोइटिक डिवाइसेस कवि ने काम में ली है, कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस कवि ने काम में ली हैं जो यहाँ महत्वपूर्ण है,
जिनको कि कवि काम में ले रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एलिट्रेशन, आपको पता है एलिट्रेशन का यूज, एलिट्रेशन एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, और एलिट्रेशन का मतलब है कि यदि दो साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा बार रिपीट होते हैं तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। एलिट्रेशन को हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। तो देखिए जैसे एक लाइन है, आप देखिए सम से, देखिए पहली लाइन दी हुई है उसमें सम से एस और से और से साउंड रिपीट होता है, तो ये कौन सा अलंकार है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन। ये एक पोइटिक डिवाइस जो कवि ने काम में ली है। फिर आप देख सकते हैं फेवर फायर, फेवर फायर भी क्या है, एक पोइटिक डिवाइस है जो एलिट्रेशन ही है, जो कवि ने काम में ली है। देखिए एलिट्रेशन एक ऐसा पोइटिक डिवाइस होता है जिसके माध्यम से जो कविता क्या बन जाती है, फिगरेटिव बन जाती है। कविता के अंदर क्या आ जाता है, राइम आ जाती है, रिदम आ जाता है, म्यूजिक आ जाता है। उसके बाद देखिए आप बता सकते हैं कि सिंबोलिज्म का भी कविता के अंदर प्रयोग हुआ है। तो फायर इज द सिंबल ऑफ अनएंडिंग डिजायर्स ऑफ मॉडर्न मैन एंड आइस इज द सिंबल ऑफ हैट्रेड। एंड राइम स्कीम, राइम स्कीम भी आप बता सकते हैं। देखिए इन द फर्स्ट लाइन व्हाट इज द वर्ड फायर एंड इन द थर्ड डिजायर। सो दीज आर द टू लाइन्स that have the same fire desire, same rhyme. तो in ice and fire, ice and fire they do not rhyme. so यहाँ देखिए हम इसको A बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे B, इसको क्या बोलेंगे फिर A। फिर देखिए आप A B A, फिर देखिए आप दूसरी जो है, दूसरी लाइन मिलती है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। दोबारा फिर क्या आया ए, इसको भी हम क्या बोलेंगे, फायर को क्या बोलेंगे ए। फिर ट्वाइस, ट्वाइस किससे रिजेंबल करता है, आई से, तो हम इसको क्या बोलेंगे बी। और डिजायर किससे करेगा, हेड से, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डिजायर हेड से मिलन करता है क्या, नहीं, तो इसको हम बोलेंगे सी। तो हम देखते हैं कि पहली तीन जो लाइनें थी उनकी राइम स्कीम क्या हुई, ए बी ए, और तीसरी की क्या हुई ए बी और सी। उसके बाद देखिए आइस और सफिस ये एक होती हैं और ये थोड़ा सा अलग है। ये अलग किससे है, देखिए हेड किससे मिलता है, ग्रेड से। तो हम इसको क्या कहेंगे, देखिए ए बी सी और बी और सी और बी। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज की हमारी पोएम कंप्लीट हुई फायर एंड आइस। आप भी इसको एक्सप्लेन करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, हम जल्दी उसका उत्तर आपको देने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको हमारा ये जो वीडियो है ये अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दें। आपके अगर कोई आपके प्रश्न हो, आपको ऐसा कोई वीडियो चाहिए किसी भी बुक के बारे में, किसी भी प्रश्न के बारे में, किसी भी पोएम के बारे में, तो प्लीज़ लिखें। हम वो जो वीडियो है आपको ज़रूर उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू।